बॉन्ड 100% आयनिक भी नहीं रहते हैं ना 100% कोवेलेंट रहते हैं ना. So 100% covalent is possible because if two elements of same electron negativities are going to happen, then the electron negativity, no charge separation will happen, right? So basically ionic character is based on the how much charge separation is happening. If charge separation is let's say 100%, then we are going to say 100% ionic. If charge separation is 50%, then 50% ionic. Charge separation, according to charge separation we are saying, okay? Right. So again, I'm just starting. Application of electron negativity we have done. First is metallic character. Another one is percentage ionic character. So whenever the charge is there, we are just saying what is ionic bond. So till now we have understood that if A is completely losing its electron, right, and B is completely gaining the electron, then we are going to say this is going to be 100% ionic. And in that case, in this scenario, what is going to be charged on A and B? So that is going to be 1.6 into 10 to the power minus 19 plus charge, and here it is going to be, you know, here it is going to be, right, minus charge. So this is plus, right, and with that this is going to be minus charge. Okay. A covalent means sharing of electrons. So I'm saying, let's say in any molecule over here. So in any molecule which is, let's say, if the charge separation is like this, so we are going to say, because this is not completely 100%, we are going to say that 75% ionic character is there. So for that there are some, let's say, formula. Okay, so there are, let's say, some formula. First formula is Henny-Smith formula. That according to that, percentage ionic character is (16 delta AB). So this is actually this delta, we are going to say 16 XA minus XB plus 3.5 XA minus XB square. So this is difference actually. So whichever is this is going to be positive, है ना, जिसका भी ज़्यादा होगा उसके हिसाब से हम we are going to take the difference. So this is first formula. Hence, so let's say we are going to take example. We are going to take example of cesium fluoride, that is most electropositive, and this is most electronegative. Electron negativity of cesium is 0.7. Electron negativity of fluorine is 4. So if you are going to see the delta, let's say cesium, fluorine minus cesium, that is going to be 4 minus 0.7. So this is going to be 3.3. Now what is going to be percentage ionic character? So percentage ionic character in cesium fluoride comes with this formula, right? So this is 16 into 3.3 plus 33.5 into 3.3 whole square. So this is going to be, अगर हम इसको multiply करेंगे 48, 52.8, and it's going to be 3.5 into 3.3 का whole square कितना आएगा? 1089. So this is going to be 10.89. So this value is approximately 52.8, and this value is 35, and 0.9 का multiply करेंगे तो 3.15. So 38.15, let's say approximately this value comes 91%. Close to 91%. So we are saying even in this compound,
ओके सर वी नीड टू आई हार्ड द इलेक्ट्रॉन सब कुछ वैल्यू, ठीक है ओके सो ओके सो जस्ट रिमेंबर दिस पार्ट कि यहाँ पे इवन इन दिस सीजियम फ्लोराइड वी आर सेइंग विद दिस फॉर्मूला कि 91% आ रहा है सो यू कैन अच्छा हम 91% को लेट्स से अप्रोक्सीमेटली 100% मान लें तो वी आर गोइंग टू से जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है उनके बीच में जो होगा वो मोस्ट सबसे ज्यादा आयनिक करेक्टर होगा और दैट इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली है ना 100%। बाकी सब में फिर क्या होगा कम होता जाएगा राइट है ना बाकी सब में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता जाएगा तो आयनिक करेक्टर कम होता जाएगा राइट सो मैक्सिमम आयनिक करेक्टर किसमें हो सकता है सीजियम फ्लोराइड में अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ठीक है आई बात समझ में ठीक है नाउ सो जस्ट राइट इट है ना इसको जल्दी से लिख लो वी विल मूव अहेड so this is one let's say one way of saying this there is another way if we are saying the electron negativity difference है ना एक मिनट what can be determined using percentage ionic character तो इससे ये पता चलेगा कि आयनिक कितना है कोवेलेंट कितना है दैट इज द मेन थिंग कि कोई कंपाउंड आयनिक है कौन कोई कंपाउंड कोवेलेंट है बस परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर से और क्या पता चल सकता है थोड़ा डाइपोल मूवमेंट में भी इसका रिलेशन है डाइपोल मूवमेंट आगे आएंगे लिखो जल्दी जल्दी लिखो अगर 100% जैसे मान लो यहाँ पे आयनिक है तो 0% कोवेलेंट उसका अपोजिट मान लो कोई 50% आयनिक है तो 50% कोवेलेंट हो गया ठीक है कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर अगर निकाल सकते हैं तो परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर भी निकाल सकते हैं so this is one formula let's say Henry Smith formula another is how was the formula derived don't worry about it just remember the formula and move on somebody has derived with this something let's say so we don't have to let's say worried about that वॉन्डरवॉल कब होगा वॉन्डरवॉल तो भाई फिजिकल अट्रैक्शन फोर्स है ना उसमें कोई शेयरिंग थोड़ी ना होती है इलेक्ट्रॉन्स की वॉन्डरवॉल क्या है वो जैसे मान लो हमारे घर में है ना जितने भी घर में सदस्य रह रहे हैं है ना सब हैं इंसानी लेकिन उनके बीच में किस तरह का रिलेशन है रियल रिलेशन है ब्लड रिलेशन है राइट दैट इज केमिकल बॉन्ड तो तुम और तुम्हारे बगल में जो नेबर रह रहा है उसके बीच में कैसे रिलेशन है राइट सो दैट इज गोइंग टू बी रिलेशन इज गोइंग टू बी फॉर्मल मतलब ऐसे हाय हेलो वाले सो लाइक दैट okay so next is so from this formula if xa minus xb is 2.1%, percentage ionic character is 50%. So we can let's say check it 2.1 से multiply करो 33.6 आ जाएगा और 3.5 into 2.1 so 2.1 का square 4.41 so this is going to be approximately 51%. So according to this formula if 2.1% होगा तो percentage ionic character 50% आ जाएगा or you can say percentage covalent character
is 50%. So 50% ionic, 50% covalent. ठीक है. डाउट है तो पूछ लो. ओके. सर आपने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस परसेंटेज में लिखा है. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस परसेंटेज में नहीं है, ये 2.1 है. सॉरी. ओके सर. Okay. Can you please explain this from this formula? Just put the value 2.1 यहाँ पे 16 into 2.1 3.5 into 2.1 का होल स्क्वायर. ठीक है. थोड़ी बहुत लर्न करनी पड़ेगी. यस, वैल्यूज या लर्न करनी पड़ेगी. Now let's say if we are talking about another thing. No, according to another scientist was there, according to Gallus, if XA minus XB is 1.7, percentage ionic character is equals to 50%. ठीक है. So if hence XA minus XB, if it is greater than 1.7, compound is predominantly ionic. XA minus XB is less than 1.7, compound is covalent. So this is another, let's say ये जो है ये एक फॉर्मूला किसी ने बताया ना. जैसे अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपनी अलग अलग अप्रोच रखी. जैसे मलिकन और पॉलिंग थे. अगर कोई एग्जैक्टली आपसे पूछे कि बताओ एग्जैक्टली परसेंटेज आयनिक करेक्टर, अब यहाँ पे ध्यान से सुनो है ना जो मैं कह रहा हूँ. अगर कोई कहे कि एग्जैक्टली मुझे, Ayush, I will not unmute you. If you have any doubt, you can just type because I don't know who you are. Or you want to ask the doubt, अपना वीडियो ऑन करो और I want to see your face, then I will take your doubt. Okay. What is your doubt? Just 1 second. हाँ. You have unmute yourself. Just 1 second. बोलो. नहीं आ रहा आवाज. फिर से बोलो. फिर से बोलो. I'm not able to hear. Anyone is able to hear? Okay. So unfortunately, you can write your, let's say, doubt over here. आपका mic का कुछ issue है. Now let's see.
I know. So okay, listen very carefully. If somebody is saying ki what is percentage ionic character and the options are like some values are there, so apply this formula. If somebody is generally asking, okay, what is going to be, let's say, nature, ionic or covalent, so you can take the help of this. Okay, you don't have to calculate the value. You can just say, okay, if the percentage ionic character is, sorry, if the electron negativity difference is more than 1.7, then we are going to say compound is going to be predominantly ionic. मतलब जैसे होता है ना, किसी कंपनी में किसी पार्टनर के अगर 50% से ज्यादा स्टेक हो जाते हैं तो वो मेजोरिटी में आ गया, तो उसके हिसाब से चीजें चलेंगी. वैसे ही है, अगर परसेंटेज आयनिक करेक्टर 50 से ज्यादा है, 51% है, तो हम कहेंगे अच्छा ये आयनिक की तरह है. And somebody is having 49% ionic character, then we will say okay, this is going to be like covalent compound. समझ में आई बात? Now let's say next, this is second. Third property is, we are going to say, हाँ, दो अलग अलग साइंटिस्ट है ना. एक साइंटिस्ट ने बोला कि भाई हम ये वैल्यू लगा के निकाल रहे हैं, दूसरे ने इसके हिसाब से बोला, दूसरे की बस वैल्यूज हैं, तो जस्ट रिमेंबर दैट. ठीक है. फिर है नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड. Nature of hydroxide. So let's say if somewhere it is the bond is like this, A O H. Okay, like you can take example, let's say NaOH. Right. So if this is the, let's say, bond over here, we have to, let's say, make sure कि ये वाला bond टूटेगा कि ये वाला bond टूटेगा. Right. Let's say if this bond breaks, then it is going to be A plus OH minus. So we are going to say this is going to be base. Case 2, let's say if this is the bond is going to break, you know, so we are going to say this is going to be AO, let's say, minus H plus. So then it is going to behave as acid. So example is going to be, let's say, we are going to say HOCl. ठीक है, या ClOH ऐसे लिखते हैं. Okay, then ClOH, or that is nothing but HOCl. So this is one example, and there are many other examples. Let's say if you are going to write, let's say I'm writing more examples here. So if I am going to say about H3PO4, actually H3PO4 is nothing but like this. This is the bond OH. So what is happening here? This bond is breaking. Okay, so this OH bond is breaking. Now how we are going to understand कि ये वाला bond टूटेगा या ये वाला bond टूटेगा? So if, you know, let's say I am writing general case AOH over here, and if electron negativity difference of A minus electron negativity difference of O is more than electron negativity difference of O and electron negativity difference of H, है ना, ये इसका electron negativity difference इसके electron negativity difference से ज्यादा है. So then what will happen? This bond is going to break. Okay, so that is the condition. Let's say example NaOH का ले रहे हैं हम. So here electron negativity of Na is, we have seen, 0.9. Electron negativity of oxygen is 3.5. Electron negativity of hydrogen is 2.1. So electron negativity minus electron negativity of oxygen is
0.9 minus, let's say difference we are taking, so difference 3.5, so this value is 2.6. And electronegativity difference of oxygen and electronegativity difference of hydrogen, that is 3.5 minus 2.1, 1.4. So which bond is going to break? This bond is going to break. Hence, it is a base. Base 2. If electronegativity difference of Xa and Xo, that is going to be less than electronegativity difference of Xo and XH, and electronegativity difference of oxygen and hydrogen, right? So electronegativity difference of A and oxygen, this is going to be less than this value. Then what will happen? This bond is going to break. So you can see here, electronegativity of chlorine is 3.1, oxygen 3.5, hydrogen 2.1. So electron negativity difference of chlorine and oxygen is going to be 3.1 minus, let's say 3.5, so 0.4. Electron negativity difference of oxygen and hydrogen is going to be 3.5 minus 2.1, so that is 1.4. Which is going to break? So this is going to break. So this is going to be, hence it is a acid. समझ में आया ये पूरा? अब मैं डाउट ले ले रहा हूँ, बहुत लोगों ने अपने अपने डाउट बोले हैं, तो मीनवाइल जो लोग और हैं वो ये लिखते हैं. This is called hypochlorous acid, correct? This is called hypochlorous acid, yes. HNO3 भी आ सकता है, yes, HNO3 भी आ सकता है. So what we have to do is we just have to check the electronegativity difference. जहाँ electronegativity difference ज़्यादा होगा, वो bond पानी में जल्दी टूट जाएगा, है ना? What will happen? तो इसको भी समझ लेते हैं. When we are saying acid and base, आप सबने acid and base पढ़े हुए हैं, right? जब हम acid और base की बात कर रहे हैं, तो basically what we have understand कि पानी में जो OH minus दे रहा है, that is going to be base, है ना? जो पानी में H plus ion दे रहा है, that is going to be acid. So think about it, ठीक है? अब यहाँ पे ये समझते हैं reason. तो जैसे मान लो ये AOH है, और लेट्स से यहाँ पे जो है ना पोलैरिटी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है. So this is going to be positive, this is going to be negative. So I'm right now, I'm not thinking about this, I'm just taking, क्योंकि ये ज्यादा है. तो क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल इसको ज्यादा खींचेंगे, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएंगे, ज्यादा पॉजिटिव निगेटिव होगा, मतलब K Q1 Q2 by R स्क्वायर. तो अगर मान लो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, Q1 की वैल्यू ज्यादा है, तो वाटर के मॉलिक्यूल इससे स्ट्रांगली बॉन्ड बनाएंगे कि इससे स्ट्रांगली बॉन्ड बनाएंगे? इससे बनाएंगे. यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव है, लेट्स से मान लो ये भी लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे भी खींच रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, तो ये जल्दी खींच के ले जाएगा. तो क्या हुआ, ये बॉन्ड टूट गया पानी में. अगर मान लो यहाँ पे ये होता है ना, ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, और ये भी डेल्टा पॉजिटिव, बट यहाँ पे क्या है, ये मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल इसको खींचेंगे, इसको भी खींच रहे होंगे, लेकिन पहले कौन टूटेगा, किसको स्ट्रांगली खींच रहे होंगे, इसको, तो ये टूट गया. आई होप कि ये बात मेरी समझ में आ रही है सबको. किसी को नहीं आ रही है देन दे कैन आस्क. हेलो. हाँ. तो सर. हाँ सर मुझे नहीं समझा वो जो आपने बोला. अरे भाई ये बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो चार्जेस के बीच में क्या होता है? K Q1 Q2 by R स्क्वायर. सर वाटर पोलर है, तो वाटर में ऑलरेडी ये चार्ज है, राइट? हाँ सर. अब यहाँ पे AOH ये लिखा होगा था. हाँ सर. अब जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड यहाँ पे पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे भी पॉजिटिव है, लेट्स से इनमें हाँ. ये ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स और यहाँ पे लगने वाला फोर्स कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा?
हाँ सर, वाला ये ज्यादा स्ट्रांग होगा। है ना इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है, हाँ सर, यहाँ चार्ज सेपरेशन ज्यादा है। समझ गया। तो सर बेसिकली तो चार। ये इसको खींच के हाँ, लेके जाएगा, हाँ सर। तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा पहले। हाँ अब सर, उल्टा, अगर मान लो ये डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा हो गया तो ये वाला बॉन्ड पहले टूटेगा, बस इतना ही है। समझ गया सर, अब समझा। थैंक यू सर। और किसी को कोई दिक्कत? चले आगे। When comparison of oxidation state is asked, we just have to compare electron negativity. हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात नहीं हो रही है ना, यहाँ तो चार्ज की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस की बात हो रही है। अगर दो दो अलग अलग एलिमेंट है तो हम देखेंगे। सर हम वीडियो कंपलसरी नहीं कर सकते हैं क्या लेक्चर में? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन करके रखो, जिसको भी डाउट पूछना है अपना वीडियो ऑन कर लो। वेदांत डाउट पूछना है? हाँ तो बताओ क्या है डाउट तुम्हारा? हेलो बोलो। सर। हाँ सर मुझे अभी भी नहीं समझा वो पार्ट कैसे हुआ। ठीक है, सुनो अब यहाँ पे फिर से सुनो सब लोग, है ना? जिसको कुछ समझ में नहीं आया वो फिर से सुनो। देखो दो चार्ज हैं, अगर मान लो एक प्लस और एक माइनस, और इस पे Q1 चार्ज है और इस पे Q2 है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। ठीक है, अब अगर मान लो Q1 बढ़ाते जाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। सिमिलरली अगर Q1 घटाते जाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी घटता जाएगा। ठीक है, बिटवीन चार्ज एंड साइज मैंने पहले ही बताया था, वी आर गोइंग टू सी चार्ज इज गोइंग टू डोमिनेट ओवर साइज। तो अगर मान लो कहीं पे आप ये भी सोच रहे हो कि साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली है ना, साइज अगर बढ़ेगा राइट, सो फोर्स घटेगा। बट अगर मान लो चार्ज भी बढ़ रहा है और साइज भी बढ़ रहा है तो फोर्स बढ़ेगा। क्यों? चार्ज का इफेक्ट साइज से ज्यादा है। अभी कुछ बोलो मत, सुनो बस, ठीक है? किसके कुछ क्वेश्चन कैसे आएंगे वो सारी बातें बाद में होंगी, पहले एक एक करके बात सुनो। ओके, तो ये बात हो गई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस बात पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, साइज पे डिपेंड कर रहा है। चार्ज और साइज में चार्ज पे ज्यादा डोमिनेट करेगा। ठीक है, बात करते हैं लेट्स से हाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से रिलेट करके समझाया कि मान लो ये मॉलिक्यूल पानी में गिरा गया, तो पानी देखने आएगा, अरे भाई कौन आया, देखो भाई कौन आया, राइट? सो नाउ ओवर हियर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, सो पॉजिटिव नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, तो ये आ गया, मान लो ये और डेल्टा जुड़ गया, मान लो ये डैश। ठीक है, ये हो गया। नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल है, ये खुद में पोल्स हैं, पोलर है ना, यहाँ पे भी कुछ पॉजिटिव होगा, लेट्स से डबल डैश, और यहाँ पे भी आएगा वाटर का मॉलिक्यूल, इधर भी देखने आएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। अब हमें कंपैरिजन करना है कि कौन सा वाला स्ट्रॉन्गर होगा, कहाँ ज्यादा, है ना, कौन कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स से पुल करेगा, हेंस दैट बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक। तो अगर ये वाला डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है तो Q1 अगर ज्यादा हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स से पुल करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। अगर मान लो ये ज्यादा है, इस यहाँ डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है, राइट, दैट्स सीकिंग द इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे अगर चार्ज सेपरेशन ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा आ रहा है, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तब ये एसिड हो जाएगा। इतना ही बोला है, समझ में आ गया? ठीक है, O will be attached by H plus of water, can it break the bond? O will be attached by, yes, it is going to attach by hydrogen.
बट हम तो यहाँ कंपटीशन देख रहे हैं ना कि कौन पहले ब्रेक हो रहा है, राइट? इससे थोड़ी ना पता चलेगा ऑक्सीजन के ब्रेक होने से, तो ये दोनों तरफ से थोड़ी ना ब्रेक हो रहा है। हैव टू, आपको पता है ना, जैसे आप अपने आप को दो लोगों से खिंचवाओ, फिर देखना किधर ज्यादा दर्द हुआ। तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर तरह से खींचेगा वो टूट जाएगा ना। दिस इज ऑक्सीजन, है ना? ये खुद को समझ लो, दो हाथ ऐसे आगे बढ़ाओ और फिर खिंचवाओ। ओके, so let's say we'll move on to another part, that is nature of oxide. So I have told you कि as, है ना, metallic character increases, basic nature of oxide increases, and acidic nature of oxide decreases. अच्छा, ये बात यहाँ पे भी लगेगी, है ना? तो हमने यहाँ बता दिया। अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे, सिमिलरली वी आर गोइंग टू से बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। मैं यहाँ पे ऑक्साइड एज वेल एज हाइड्रोक्साइड भी लिख ले रहा हूँ, ओके? क्योंकि ऑक्साइड को पानी में डाल दोगे तो फिर आपको हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। तो अच्छा ये बताओ, NaOH, KOH, है ना, और लेट्स से RbOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड, सबसे अच्छा बेस कौन है, स्ट्रॉन्गर बेस? CSOH, करेक्ट ना? टॉप टू बॉटम इट इज इंक्रीजिंग, सीजियम का हाइड्रोक्साइड। कई बार बच्चों को याद नहीं रहता है, वो सोचते हैं NaOH उन्होंने सुना हुआ है तो वो कहेंगे NaOH, राइट? सो दैट इज द, लेट्स से, वन थिंग व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है? डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना? तो जैसे जैसे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, है ना, बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड बढ़ेगा। हेंस, ना, हेंस डाउन द ग्रुप basic nature of oxide and hydroxide increases. So hence अगर मैं बोलूंगा NaOH तो इससे ज्यादा अच्छा है KOH, है ना, LiOH, फिर RbOH, फिर आई एम गोइंग टू से सीजियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? इसी तरह से अगर मैं बोलूंगा लेट्स से BeOH होल ट्वाइस, then I am going to say, let's say, this is basic nature, है ना? So if I am saying BeOH whole twice, then MgOH whole twice, then CaOH whole twice, then SrOH whole twice, then BOH whole twice, ठीक है? ये बात समझ में आ रही है? ओके, संकेत, जो भी डाउट है मुझे व्हाट्सएप, वो सॉरी व्हाट्सएप कह रहा हूँ, चैट पे भेजो, ओके? बेसिक नेचर अब समझते हैं। लेट्स से अगर बेसिक नेचर बढ़ रहा है तो एसिडिक नेचर घटेगा, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है कहने की, राइट? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हेंस एंड क्रॉस period from left to right. From left to right, metallic character decreases. Metallic character decreases, hence basic nature is going to decrease.
and acidic nature is going to increase. So hence, if I am going to talk about, let's say अगर मैं बात करूं NaOH और C, let's say MgOH hold wise, कौन ज्यादा अच्छा बेस है? NaOH. KOH और COH hold wise, इनको मैं कंपेयर करूंगा, then which one is, let's say, stronger base? KOH. Let's say in oxide, if I am going to write oxides, okay, सारे oxides में लिखूं, जैसे मान लो मैंने लिखा Na2O, I have written MgO, and I have written Al2O3, SiO2, and silicon के बाद phosphorus P2O5, SO3, Cl2O7. Now let's understand the nature. So these are basic. This one is amphoteric. This one is, these two are weakly acidic, and these are strongly acidic. If you are going to, let's say, just try to make acids of these, है ना, these compound, अब यहाँ पे आप इनके एसिड बनाओगे तो क्या होगा, है ना, जैसे इनको पानी में डालोगे, है ना, oxides in water, what will happen? So Na2O will convert into NaOH, MgO will convert into MgOH whole twice, so you can check like this. Al will convert into AlOH whole thrice. SiO2 is converting into H2SiO4, or you can say H2SiO3. जैसे H2CO3 आपने देखा है कार्बोनिक एसिड, तो सिलिकॉन भी क्या है, सेम है. Between HCl and H2SO4, H2SO4 is stronger acid. ठीक है, तो जैसे आपने H2CO3 देखा है कार्बोनिक एसिड, वैसे ही क्या हो जाएगा H2SiO3. तो इसको इस तरह से भी लिखते हैं, सॉरी H4 यहाँ होना चाहिए, H4SiO4 और H2SiO3 सेम थिंग है. इसमें से अगर पानी निकाल देंगे, so 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन if we are going to remove, then this is going to form H2SiO3. ये क्या बनेगा, H3PO4, this is H2SO4, and this is HClO4. So you can understand, है ना. अब डाउन द ग्रुप यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिक नेचर घट रही है और एसिडिक नेचर बढ़ रही है. तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड हुआ, HClO4, है ना. H2SO4 और HClO4 में ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन हुआ, HClO4. एम्फोटेरिक पे आएंगे, रुको ना, तुम आगे क्यों भागते रहते हो, जितना आगे समझ में, जितना आता जाए उतना बस देखो, आएंगे ना ये. जब कोई नया टर्म बताया एम्फोटेरिक, देन आई विल टेल यू. तो ये बात समझ में आ गई, लेफ्ट टू राइट. ओके, नाउ इन मेटल्स के बाद हम समझते हैं थोड़ा नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स में क्या हो रहा है, in non-metals, there are two types of acids. First one is called hydra acids. This example, first one is hydra acids. Hydra acids means when hydrogen is directly attached to non-metal. जैसे example, let's say HCl, HBr, HI, है ना, H2S, HCN, like this, etc.
ठीक है. Here these hydrogens are directly attached to non-metals. Second types of acids are oxy acids. When hydrogen is attached to oxygen and oxygen is attached to non-metal. Or element. So let's say example, you can say H2SO4, HClO4, right? HNO3, etc. Anything. Now, why I have written this? So you will see that the nature of acidic nature is not similar in hydra acids and oxy acids. The nature of, or you can say acidic nature is not similar in hydra acids and oxy acids. So we are going to understand this part over here. Acidic nature of hydra acids. ठीक है. लिख लो भाई, ये सब बातें. बोलो वेदांत, क्या दिक्कत है? हेलो हाँ सर. हेलो. हाँ, बोलते जाओ. हाँ सर, तो ऑक्सी एसिड्स में आगे तो बोलो. ऑक्सी एसिड्स में चलो. सर हाँ सर तो जो हमने ऊपर लिखा ना वो ऑक्साइड्स वाला पॉइंट, हाँ सर तो उसमें एसिडिक नेचर बढ़ रहा है ना ऑक्साइड्स का लेफ्ट से राइट में, हाँ, बढ़ रहा है ना. और हाइड्रोक्साइड्स में भी सेम है सर, है ना? हाँ, नहीं, हाइड्रोक्साइड में घट रहा है ना. एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो बेसिक नेचर घटेगा ना. हाइड्रोक्साइड जनरली हम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो बेस के हिसाब से करते हैं ना हाँ, जनरली. समझा. ओके, थैंक यू सर. ओके, बोलो ध्वनि. हेलो सर, एक डाउट है. ये ऑक्सी एसिड्स आप एक बार बता सकते हो वापस? अभी समझा नहीं. बता रहे हैं. ठीक. when I am talking about H2SO4, ठीक है. हाँ. तो अगर H2SO4 का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो कैसा होता है H2SO4 का स्ट्रक्चर? So here oxygen is not directly attached to sulfur. If I am going to talk about, let's say, अगर आपने H2CO3 का स्ट्रक्चर देखा है सबने? नहीं सर, मैंने नहीं देखा. बना के दिखा सकते हो? हाँ, ये ऐसा हो गया. ठीक है, like this. तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या होगा? What will happen? कि डायरेक्टली ऑक्सीजन इज नॉट अटैच्ड टू नॉन मेटल. ठीक है, यहाँ पे भी सल्फर इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू, है ना, हाइड्रोजन. इट इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन. ओके सर, तो मतलब अगर इंटरमीडिएट में ऑक्सीजन रहेगा तो हम ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं. जब भी कभी यहाँ पे ऑक्सी एसिड्स की बात होगी, राइट? हाँ. दिस इज, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, लेट्स से, हाउ एसिडिक नेचर इज गोइंग टू, लेट्स से, चेंज. तो
Okay, so acidic nature of hydra acids, right? From left to right, acidic nature increases as electron negativity increases. Hence, अगर हम बात करें CH4 की, है ना, ये भी एक तरह से हाइड्रा एसिड है. देन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट NH3, फिर H2O, HF. ये एसिडिक नेचर हो गया. If I am going to talk about, let's say SiH4, PH3, H2S, HCl. So left to right, acidic nature is increases as electron negativity is increasing. ठीक है, in hydra acids. Now here comes very important point. You have to remember. From top to bottom, acidic nature increases as size increases, not electron negativity. So it is not dependent on electron negativity, top to bottom. ठीक है, अब हम समझते हैं कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? लेट्स से थिंक अबाउट इट. कहीं पे ये बॉन्ड है HF और कहीं पे ये बॉन्ड है HI. ठीक है, दिस इज बिगर, है ना, आयोडीन बहुत बड़ा होगा ऐसा, राइट? So this is iodine is going to be bigger and that's why the bond length is going to be bigger. अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड एनर्जी घटती है. ठीक है, दिस इज व्हाट वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर. बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड एनर्जी घटती है. बॉन्ड एनर्जी का मतलब बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी वो घट जाएगी. ठीक है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी घटेगी. तो दैट्स व्हाई व्हाट इज हैपनिंग, ये मैं रीजन बता रहा हूँ कि साइज बढ़ने के कारण रीजन क्या है. बॉन्ड लेंथ हैज इंक्रीज्ड, बॉन्ड एनर्जी हैज डिक्रीज्ड एंड दैट्स व्हाई एसिडिक नेचर, ये बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा. मतलब एसिडिक नेचर का मतलब क्या है? से एग्जांपल वी आर गोइंग टू राइट as size increases, or you can say bond length increases. As size increases, or you can say bond length increases, bond energy decreases. Hence, from top to bottom, hydrogen non-metal, let's say X bond, will break easily. तो ये जल्दी से टूट जाएगा, ये जल्दी से टूट जाएगा तो क्या देगा? H plus plus X minus. तो जो बॉन्ड जितनी जल्दी टूटेगा उतना ज्यादा एसिडिक, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड. एंड दैट्स व्हाई व्हाट इज हैपनिंग, टॉप टू बॉटम एसिडिक नेचर इज इंक्रीजिंग. हेंस एसिडिक नेचर अगर हम लिखेंगे, कभी कभी पूछा जाता है स्ट्रॉन्ग ओवर हियर HF और HI में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है ना, तो कई लोग HF बोल देते हैं. HF नहीं है, HBr, HI. Over here, HI is going to be stronger acid. Okay. Now, let's say we are going to say about acidic nature के, तो H2O वाला भी देख लें. H2O आप यहाँ से भी याद रख सकते हो, H2O तो न्यूट्रल होता है, H2S थोड़ा सा एसिडिक होता है, राइट? सो डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर बढ़ रहा है. H2SE, H2T, ये तो हो गया हाइड्रा एसिड्स में. ठीक है, acidic nature of hydra acids. Now we are going to think about acidic nature of oxy acids. आज के मैं नोट्स भेज दूंगा, केवल सुनते रहो ध्यान से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों ने नहीं लिख पाया होगा. डोंट वरी, टुडेज नोट्स आई विल सेंड. एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्सी एसिड्स क्या हो जाएगा? तो हियर दिस इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, राइट?
सो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्सी एसिड इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी। क्यों? अब यहाँ हाइड्रोजन डायरेक्टली नॉन मेटल से नहीं जुड़ा है, तो ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये वाला, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड लेते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। सो हियर कम्स कि ये ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एलिमेंट। If element is let's say it is going to attach with hydrogen oxygen, तो ये bond कैसे affect हो रहा है, कैसे इसकी electron negativity से ये affect हो रहा है, right? So that's what we are going to think about it. Here size is not going to be important, so that's why the trick is electron negativity. Remember it. Electron negativity बढ़ेगी तो acidic nature बढ़ती जाएगी। तो अब उसको भी समझ सकते हैं, electron negativity के बारे में कैसे समझाएंगे, अभी थोड़ी देर में आते हैं। So example I'm going to write from left to right. We have already seen, है ना, from left to right, acidic nature increases. So if I am going to talk about, let's say, H3PO4 and then H2SO4 then HClO4, then we can see okay like this. ठीक है, ये हमने अभी देख लिया है, ठीक है। From left to right, H3PO4, H2SO4. Let's say if I am going to talk about here, so this is going to be H2SiO3. Similarly, we can say H2CO3 is strong, weaker acid than HNO3. ठीक है। ऑक्सी एसिड फ्लोरीन का भी नहीं बनता है, और मतलब फ्लोरीन का एक ही बनता है, उसे छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन तो खुद में ही है, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड, यहाँ पे साइज से नहीं देख रहे हैं ना, तो क्या देख रहे हैं वो देखो। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर एक्चुअली में, इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, ऑक्सीजन जो है ना वो बहुत मोर इलेक्ट्रॉनिगेटिव है। सो ऑक्सीजन इज लेट्स से अटैच्ड विद सम एलिमेंट एंड दिस इज हाइड्रोजन। Now what will happen here, अगर आप सोचो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और इन दोनों से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, सो दिस इज गोइंग टू पुल द इलेक्ट्रॉन। अब मान लो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, मतलब कार्बन से नाइट्रोजन हो गया, राइट। तो नाइट्रोजन इज नॉट गोइंग टू लूज दैट मैनी इलेक्ट्रॉन। भाई मान लो तुम जो है ना सबसे स्ट्रॉन्गर हो और अपने घर में दो भाई हैं, तुम दो भाई बहन है, सबसे पैसे लेते हो रहे, जो भी घर में पैसे मिल रहे हैं, पॉकेट मनी यू आर कॉलिंग। अब जैसे जैसे तुम्हारा एक भाई बढ़ता जा रहा है, राइट, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती जा रही है, तो तुम उससे लेना कम हो गया, तो किससे लोगे भाई, भरपाई किससे होगी, हाइड्रोजन से। इससे जो नहीं मिल पाया वो इससे मिलेगा, इट इज गोइंग टू पुल अ लॉट फ्रॉम हाइड्रोजन। क्या होगा, ये इससे ज्यादा खींचने लग जाएगा, तो ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव बन आने लग जाएगा। फिर जैसे ही पानी में आएगा तो पानी इस पे ज्यादा स्ट्रांगली इसको पुल करेगा। रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू, जब चार्ज सेपरेशन ज्यादा हो रहा है तो जल्दी पानी में टूटेगा। अंडरस्टूड? यस और नो, है ना। तो इसीलिए फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, राइट, व्हाट इज हैपनिंग हियर, एसिडिक नेचर इज इंक्रीजिंग। ओके, तो बस ये याद रखना है। अब इनमें और एग्जांपल लिख सकते हैं, अगर हम लेफ्ट टू राइट के बाद टॉप टू बॉटम आएंगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एसिडिक नेचर increases. So if I am going to talk about, let's say, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा HNO3 की H3PO4 से, ये बहुत आसान है रिकॉल करना। तो HNO3 is going to be stronger acid than H3PO4, right? Then H3ASO4, then H3SBO4, like that. So that is going to be stronger acid. ठीक है. Similarly, you can say H2SO4 is going to be stronger than H2SeO4 and H2TeO4, like this. So similarly, we can say HClO4 stronger than HBrO4 than HiO4.
Okay. Now these are, let's say, acidic nature. I have told you according to electron negativity values. Now let's understand one more thing. Another note. One element can show multiple oxidation state. Or can show multiple oxy acid. Hence, in those elements, in those let's say oxy acids, acidic nature increases as oxidation number increases. तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो मैंने बताया ही था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है. अब ऑक्सीडेशन नंबर आपको तो पता नहीं है क्या होता है, तो आप याद रखो जितने ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ते जाएंगे उतना. एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूंगा HNO2 और HNO3, ये शायद आपको बात पता होगी कि HNO3 is stronger acid than HNO2. If I am going to talk about, let's say, H2SO3, and then I am talking about H2SO4, then I know this is going to be. अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है आपको नहीं पता है, जस्ट राइट नाउ राइट इट कि जितने ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ते जा रहे हैं उतना ज्यादा हो जाएगा. तो ये +4 +6 HOCl, HClO2, HClO3, HClO4. This is I am writing oxidation state. You don't know, so don't worry about it. ठीक है, ये आगे आप सीख जाओगे, अभी लिख लो बस. टॉप टू बॉटम कम होना चाहिए ना, तो कर किया तो है कम, कम ही तो है. अच्छा, HClO4 is called, so we can write the names. It is called hypochlorous acid. This is called chlorous acid. This is called chloric acid. This is called perchloric acid. ठीक है. One element can show multiple oxidation or multiple oxy acids, and in those oxy acids, acidic nature increases as oxidation number increases, or you can say electron negativity increases. क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कल कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी. HNO2 और H2SO3 का नाम बताओ. ओके, HNO2 is called nitrous acid. And H2SO3 is called sulfurous acid. अच्छा ये बताओ, कौन मुझे बताएगा कि Fe2+ को क्या बोलते हैं और Fe3+ को क्या बोलते हैं? Anyone? कौन बताएगा? Yes. सर फेरस बोलते हैं 2+ को और फेरिक बोलते हैं 3+ को. ठीक है, तो यहाँ से सीखते हैं एक ट्रिक. सर जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम सर है, अपने ऊपर सर बोलो सर बोलो. फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपने एसिडिक नेचर इंक्रीजेस लिखा है. कहाँ पे? अरे ऊपर डिक्रीजेस. ओके, डिक्रीजेस है. ठीक है, क्या डिक्रीज हो जाए क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेस. राइट, दिस इज वी हैव डन. ओके, तो मैं यहाँ पे बोल रहा था ट्रिक क्या है याद रखने वाली.
Okay, just remember this कि lower oxidation state that is called us, higher oxidation is called ic, ferric, ferrous, ferric, cuprous, cupric, mercurous, mercuric, plumbous, plumbic, stannous, stannic. ठीक है, this is the already we know this, ferrous ferric, cuprous cupric, mercurous mercuric, plumbous plumbic, stannous stannic. Now here also you can see us, जैसे इसको देखो ये, now here we are having 4 oxidation state. Now obviously you want to have the difference, so we cannot, let's say, write only on the basis of us and ic. We have to write something, let's say some prefix also. So when the hypo is coming, that means इससे भी कम, hypo us acid, ठीक है, and per means उससे भी ज्यादा, जैसे परमैंगनेट याद होगा आपको, है ना, परमैंगनेट, परमैंगनिक एसिड होता है, HMnO4 is called, MnO4 से आता है ना परमैंगनेट, तो ये HMnO4 is called permanganic acid, per. Okay, so that's you can remember. So over here perchloric acid, ठीक है. अब यहाँ पे सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक, नाइट्रस, नाइट्रिक, याद रहेगा, है ना. ओके, दिस इज अ ट्रिक. अगर इनके एनायन बनाएंगे, एनायन, तो बताओ सल्फ्यूरिक एसिड का क्या बनता है, सल्फेट, है ना. तो अगर इक एसिड से का एनायन बनाएंगे, इक एसिड का एनायन बनाएंगे तो बनेगा 8. नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेट, HNO3 से अगर निकालेंगे H+ आयन तो क्या बनेगा, नाइट्रेट, ठीक है. नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट, क्लोरिक एसिड से क्लोरेट, परक्लोरिक एसिड से परक्लोरेट, लाइक दिस. फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फेट, कार्बोनिक एसिड से कार्बोनेट, लाइक दिस. ओके, अगर मान लो अस एसिड से निकाल रहे हैं तो बनता है आइट, है ना. क्या आता है, सफिक्स आइट. तो सल्फ्यूरस एसिड से सल्फाइट, नाइट्रस एसिड से नाइट्राइट, क्लोरस एसिड से क्लोराइट, हाइपोक्लोरस एसिड से हाइपोक्लोराइट, ठीक है. रिमेंबर दिस. थोड़ा सा नेमिंग मैंने बता दिया. लेड को बोलते हैं प्लम्बस. लेड होता है, लेट्स से हियर दिस इज प्लम्बस, दिस इज प्लम्बिक. सर टोटल कितने हैं, बहुत सारे हैं, बट जो जितने आपको दिखते जाए उनको ध्यान रखो. ये ट्रिक है याद करने की. छोटा वाला अस है ना, आइड, आइड कब आता है, हाँ आइड भी आता है. आइड आता है हाइड्रा एसिड में ना. ये जो 2 सफिक्स हैं वो हैं आपके ऑक्सी एसिड के, 8 आइड, अस हटाओगे आइड, है ना. अगर इक हटाओगे तो 8. और अगर मान लो हाइड्रा एसिड में जाए तो Cl- को क्या बोलते हैं, क्लोराइड. Br- को क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड. सल्फर, लेट्स से H2- को क्या बोलते हैं, सल्फाइड. सो नेमिंग इज देयर. तो आइड आता है हाइड्रा एसिड में, ठीक है. आइड किस में आता है, हाइड्रा एसिड्स में. फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फाइड, साइनाइड, Cn-, लाइक दिस. तो आइड का वहां पे नहीं, ये लर्न करना जरूरी है भाई. ये लर्न क्यों नहीं करना है, ये तो करना ही है, वरना फिर ऐसे ही कभी लिख दिया जाएगा कि बताओ, और आपको पता ही नहीं होगा इसका फॉर्मूला क्या है. जैसे मैंने बोला सोडियम क्लोरेट, बताओ क्या होगा फॉर्मूला, सोडियम क्लोरेट. तो पहले सोचो, क्लोरेट, क्लोरेट, क्लोरेट किससे आया होगा, क्लोरिक एसिड से आया होगा, तो क्लोरिक एसिड लिखो पहले, ठीक है. फिर उसमें H+ हटा दो तो क्लोरेट बन गया. क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट, फॉर्मूला क्या हो गया, NaClO3, करेक्ट, ठीक है. नेमिंग में कभी और बताऊंगा ना, ये मैंने अभी ऊपर से बता दी है. ओके, नेमिंग आई हैव टू टेल यू. तो हो सकता है मैं इसके बाद ही बता दूं, इस क्लास के बाद. आई विल टेल यू नेमिंग. तो हाँ सर एक बार जरा ऊपर जाओ ना.
यार ऊपर मत भेजो भाई। सर प्लीज कुछ लिखना नहीं है, हाँ सर, सर बस बस। सर यहाँ पे आपने वो ऑक्सीडाइजेशन नंबर लिखा है ना हम्म। सर? नीचे नीचे सर, ठीक है, ऑक्सीडाइजेशन नंबर लिखा है ना? हाँ हाँ बस। सर और एक चीज है सर, वो प्लीज जरा सिर्फ आयरन के लिए वो ट्रिक रिपीट कर सकते हो आप प्लीज? आयरन में बोला ना, लोअर वाले को अस, हाँ हायर वाले को एक, फेरस फेरिक, क्यूब्रस क्यूब्रिक, मर्क्यूर सॉरी हाँ मर्क्यूरस मर्क्यूरिक, एंड प्लम्बस प्लम्बिक, स्टेनस स्टेनिक। हाँ सर, बस समझ गया, थैंक यू सर। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे ये हमने समझ लिया एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर। अब क्या बता रह गया हमारा, बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ, अच्छा हाँ एम्फोटेरिक ऑक्साइड हम रह गए थे। नेचर ऑफ ऑक्साइड में ही हमने ये कर लिया। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, amphoteric oxides are those oxide which can react with acid as well as base. ये +1 +3 मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई है, ठीक है। अभी आपको नहीं आता है बस लिख लो वहां पे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब है ऑक्साइड which can react with, which can react with acid. So it's very important, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। which can react with acid as well as base, ठीक है। तो जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर ले, तो लेट्स से एग्जांपल वी विल टेक, तो Al2O3 plus HCl is going to give AlCl3 plus H2O. This is going to form Al2O3 is going to react with NaOH. So this is going to form NaAlO2, sodium metaaluminate. So this is going to form like this segment plus H2O. ठीक है. So this is called sodium metaaluminate. So now we are going to write कि कौन कौन से name of let's say amphoteric acids, sorry oxide. So name of, so you have to remember these names. First is BeO2, BeO, sorry, BeO, Al2O3. Then we are having ZNO. Then we are having SNO, SNO2, PbO, PbO2, Cr2O3, and AS2O3. That's it. These are main amphoteric oxide, etc. ठीक है. So let's say ये तो हो गए, इनके नाम याद रखने हैं. B2O5 भी एम्फोटेरिक है, यस 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 यस, वेनेडियम के साथ, करेक्ट. B2O5. Okay, so these are, let's say, some common names of amphoteric oxides. Now, neutral oxide. Oxide which
oxide which does not react with acid or base. So oxide which does not react with acid or base. So ना तो ये acid से react करता है ना base से react करेगा. So the name of those oxides are example N2O, NO and CO. That's it. These are the three oxides. So there is no etc. anything. What is the name of N2O? That is called nitrous oxide. Laughing gas. And this is called nitric oxide. So remember the name. Again यहाँ पे भी वही बात है. Oxidation state छोटा वाला अस, बड़ा वाला एक. So nitric oxide. And CO carbon monoxide. नहीं आयरन ऑक्साइड एम्फोटेरिन नहीं है. वाटर इज एक्चुअली कई बुक में लिखा हुआ है कि वो क्या कहते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड है क्योंकि वो पीएच उसका 7 आता है. बट होता ये है, हाँ लाफिंग गैस लिखा है मैंने. होता ये है कि वाटर जो है एसिड एज वेल एज बेस दोनों की तरह बिहेव करता है. इट कैन गिव H प्लस आयन एज वेल एज OH माइनस आयन. तो कई बुक में लिखा होता है. तो डोंट वरी, वाटर को हम अभी कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है. एक्चुअली थोड़ा सा उसको पढ़ना हिस्टीरिया होता है कि एक्चुअली लोग उसको फील करने के बाद ऐसा हंसने का मतलब ऐसे लाफ्टर टाइप नहीं है. दैट इज लाइक स्माइलिंग टाइप के एक्सप्रेशन आएंगे, राइट? वैसा कुछ रहेगा. सर वो AS2O3 वो क्या है सर? आर्सेनिक. आर्सेनिक. अच्छा ओके सर, समझा. थैंक यू सर. ओके. लाफिंग गैस का कैसे होता है वो आप लोग एक बार देखना, क्या कहते हैं यूट्यूब पे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या फील हो रहा है, क्या है क्या नहीं है ना. ऑल दोस थिंग्स. सो इट्स अ गुड थिंग. जस्ट कीप, है ना, सर्चिंग इधर उधर वाली बातें जो भी है ना. लेट्स मूव ऑन टू अनदर पार्ट. ये तो हो गया हमारे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, हो गया लगभग लास्ट है, लेट्स से दैट इज बॉन्ड लेंथ. So remember I have told you in atomic radii जब A और B आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, what is DAB? DAB is nothing but RA plus RB minus 0.09 XA minus XB. ठीक है. So if electron negativity is going to increase, bond length is going to decrease. So bond length is inversely proportional to electron negativity. ओके. तो ये तो हो गया एप्लीकेशन. एंड हाइड्रेशन एनर्जी मैंने आपको पहले ही बता दिया है. ठीक है. नेक्स्ट अब टॉपिक इज हाइड्रेशन एनर्जी. तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, राइट? इसमें एनी एलिमेंट, लेट्स से एनी आयन, इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट Na प्लस गैस दैट इज गोइंग इनटू वाटर, और फिर ये Na प्लस एक्वस बना रहा है, then it is going to be the energy is going to release, that is going to called hydration energy. And this hydration energy is actually में
is proportional to charge by size ratio. So remember this. Charge increases, hydration energy increases. So hence, let's say if we are going to talk about Na plus, Mg2 plus, Al3 plus, किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी? Al3 plus की. We are going to talk about Na plus, A plus, rubidium plus, let's say lithium plus, and cesium plus. So size बढ़ता जा रहा है down the group, charge तो same जगह same है +1. So that's why size will increase, then hydration energy will decrease. So सबसे ज्यादा किसकी होगी? Lithium की. एक एप्लीकेशन नॉमेनक्लेचर मैंने बताया ना, नॉमेनक्लेचर मैं बताऊंगा, अलग से बताऊंगा पूरा. यस ध्वनि बोलो. हेलो सर, एक डाउट है. अभी हाइड्रेशन एनर्जी वो एनर्जी है जब किसी चीज को मतलब Na या कोई भी मेटल या आयन को हम डिसॉल्व करते तो निकलता है. राइट. सर तभी वो बेस या फिर एसिड नहीं बन जाता है. अभी Na को वाटर में डिसॉल्व किया तो वो NaOH नहीं बन जाता है. नहीं, Na को नहीं कर रहे ना, Na प्लस को कर रहे हैं. Na को करेंगे तो NaOH बन जाएगा. हम Na प्लस की बात कर रहे हैं. तो जब Na को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो उसमें लॉट ऑफ अदर एनर्जी विल आल्सो कम. ये शायद मैं बता चुका हूँ ना कि आयनाइजेशन विल कम एंड देन हाइड्रेशन विल कम. हाइड्रेशन एनर्जी पहले बता दिया है ना मैंने आप लोगों को. है ना, आपको 2 लेक्चर पहले बताया था. तो अभी जब आयंस को डिसॉल्व कर रहे हैं तो कोई रिएक्शन नहीं टेक्स प्लेस. जैसे मान लो, ले तो ये समझो कि जैसे अगर हमने किसी एलिमेंट को, जैसे क्वेश्चन क्या है, जैसे मैं मान लो एग्जांपल ले रहा हूँ NaCl को, है ना, ये सॉलिड है, इसको पानी में डाला तो यहाँ पे क्या बनेगा? Na plus aqueous plus Cl minus aqueous. What is the meaning of Na plus aqueous? Na plus is surrounded by water molecule. This I have told you this कि प्लस के लिए क्या आएगा? ऑक्सीजन वाला एंड आएगा. तो ऐसे करके मैं पूरा ऐसे, अगर मुझे मॉलिक्यूल बनाना हो तो मैं ऐसे बना दूंगा. राइट. दिस इज गोइंग टू बी, मैंने ऐसे बना दिया है. तो इनके बीच में जो भी इंटरेक्शन होंगे, राइट, वो एनर्जी रिलीज होगी. दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी. सो वी विल कम टू दैट पॉइंट. तो ये क्या हो जाएगा? Na plus aqueous. ठीक है. ऐसे Cl माइनस हो जाएगा. राइट. Cl माइनस aqueous क्या हो जाएगा? Cl माइनस की तरफ क्या आने लग जाएंगे? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन. है ना. यू कैन जस्ट इमेजिन. ओके मैन, आई एम नॉट ड्राइंग. ये इसको आप समझ सकते हो कि इसकी तरफ हाइड्रोजन आएंगे. ठीक है. Now in this whole process what is happening? पहले ये NaCl टूटा, है ना. हमको तो ये पता है कि ये डेल्टा H, इसमें क्या लगेगा? डेल्टा H रिएक्शन what will happen, but how we are going to calculate that is going to based on कि पहले हम NaCl solid को convert करेंगे NaCl, Na plus aqueous, Na plus gas plus Cl minus gas, and that is called lattice energy. इनको पहले गैस में तोड़ना पड़ेगा. फिर ये Na plus से Na plus aqueous बना, ये हो गया डेल्टा H.
hydration energy of cation, and that is going to be delta H hydration energy of anion. Now, whether cation or anion doesn't matter, इनकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है, केवल हम इसकी बात कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस कि ये क्या हो रहा है. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. तो मैंने यहाँ पे लिखा हाइड्रेशन एनर्जी Na प्लस गैस से Na प्लस एक्वस, इस पर डिपेंड करती है चार्ज बाई साइज. तो चाहे आप कैटायन लो चाहे एनायन लो, इट डिपेंड्स ऑन चार्ज बाई साइज रेशियो. सो सिमिलरली इफ आई एम गोइंग टू राइट लेट्स से फॉर F माइनस, ज्यादा होगा किससे, Cl माइनस से, देन Br माइनस से, देन I माइनस. ठीक है. हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीजेस, ये तुम ब्रैकेट में लिख लेना, दिस इज वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस. Hydration energy increases when hydrated radii increases. Ionic mobility decreases. Ionic mobility का मतलब, hydrated radii का मतलब कितना है, जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उतना वाटर मॉलिक्यूल इसको घेरेंगे, उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल घेरेंगे. ये हो सकता है प्राइमरी लेयर हो, उसके बाद सेकेंडरी लेयर भी लग रही होगी वाटर की. इफेक्ट लग रहा है ना. इफेक्ट पॉजिटिव है तो क्या होगा, पहले वाटर के मॉलिक्यूल ने घेर लिया, फिर और वाटर के मॉलिक्यूल ने घेर लिया, तो सेकेंडरी लेयर बन गई, ऐसा करके. सो दैट्स व्हाई द साइज इज गोइंग टू इंक्रीज, हाइड्रेटेड रेडियाई इज गोइंग टू इंक्रीज. नाउ समथिंग इज गेटिंग बिगर, वो क्या होगा, धीरे धीरे मूव करेगा, तो आयनिक मोबिलिटी इज गोइंग टू डिक्रीज. बस इतना याद रखना है. ओके. अब ये बात समझ में आ रही है इतनी. अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ये लगभग खत्म हो गया आपका, बस नॉमेनक्लेचर रह गया है, वो मैं नॉमेनक्लेचर आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. तो नेक्स्ट क्लास में आपके लिए डाउट क्या क्या है. अच्छा, कल हमारी डाउट क्लास है, तो कल हम जितने भी अभी तक पीरियोडिक टेबल का जितना होमवर्क दिया है मैंने जेई मेन, उसका डाउट भी डिस्कस करेंगे. ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस डाउट्स ऑफ द गिवन होमवर्क. तो जब आपका TWT आने वाला है, तो आपके पास एक और क्लास है फ्राइडे वाली. फ्राइडे में हम नेमिंग बता देंगे, और आपके लिए होमवर्क अब क्या है, अब होमवर्क है कंप्लीट, तो बच गया है सब आपको करना है. ये जेई मेन के बाद क्या आ रहा है, तो कुछ जैसे बातें आपको और एक क्वेश्चंस कर करके और आ जाएंगी समझ में. गेट इक्विप्ड टू जेई एडवांस. ये आपको करना है, गेट इक्विप्ड टू जेई एडवांस. ये थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है. विंडोज टू जेई मेन एंड विंडोज टू जेई एडवांस. Get equipped to JEE main, get equipped to JEE advance, Windows to JEE main, Windows to JEE advance. इतना करना है. ज्यादा होमवर्क है, राइट, बट ये आपको अभी नहीं करना है. फ्राइडे को थोड़ा डिस्कस करेंगे, और कहते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर अगर आपको डाउट रहेंगे तो वहां डिस्कस कर लेंगे, फ्राइडे के बाद भी अगर रहेगा तो. ओके, इसमें एक्सपर्टाइज अटेनर है कहीं ना कहीं आंसर की. नहीं, इसमें नहीं है शायद. ओके, दैट्स इट. सर, इज ऑक्सीडेशन एनर्जी अपोजिट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी? नहीं नहीं ना. नेक्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, पेपर डिस्कशन होगा. अगर पेपर का आप लोग फोटो खींच के रखोगे तो मुझे दे देना. कोई एक स्नैपशॉट लेते रहो, है ना. कोई एक ऐसा कर लो कि स्नैपशॉट ले लेना क्वेश्चंस का, मुझे भेज देना, तो डिस्कस कर लूंगा पेपर. अगर पीडीएफ है तो मुझे भेज दो, विल डिस्कस पीडीएफ.
यस वी कैन डिस्कस राइट। अभी भी कर सकते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस और नेक्स्ट क्लास में भी कर सकते हैं। आप बोलो आपको कौन क्या क्या डाउट है। मुझे भेजो अगर किसी के पास है तो पीडीएफ भेजो कहीं पे, कोई कह रहा है पीडीएफ है। वी आर नॉट डिस्कसिंग होमवर्क, वी आर डिस्कसिंग पेपर। अगर किसी को पेपर में डाउट है उसको बता रहे हैं। डिस्कशन वी आर गोइंग टू डू टुमारो, है ना, डाउट क्लास में। सर टेस्ट क्वेश्चन है सर, 10 plus l less than 5 व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यही क्वेश्चन है, n plus l less than 5 इक्वल्स टू 5 भी नहीं है ना। एक मिनट, किसी ने मुझे भेजा है, रुक जाओ पेपर। तपन कैसे डाउनलोड किया आपने? साइट पे दिया है सर, वेबसाइट पे से। ओके हाँ, आप पूछ लो बेटा जब आपको मन हो। ओके चलो एक मिनट देखते हैं। वेट बताओ भाई कौन सा डाउट है। क्वेश्चन नंबर 34 36 द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग, ऑर्बिटल्स पूछा है इन्होंने, ठीक है। सो लेट्स से n plus l is less than 5, ठीक है। तो लेट्स से n that means equals to 4, है ना, equals to 4 or less than equals to 4. So n can be 4, l is going to be 0. N can be 3, l is going to be let's say 1. N can be 2, then l can be 2. nahi, है ना, this is not possible, right? If n is equals to 2, then l cannot be 2, right? n equals to 3, then l equals to 1, and n less than भी हो सकता है, so that is why n equals to 3, l equals to, right, 1. less than वाले बात कर रहे हैं, ये नहीं होगा। n equals to 2 दो, l की वैल्यू क्या हो सकती है 1, n equals to 2, then l can be 0, ठीक है। या फिर आप उल्टा भी कर सकते थे, you just go with like 1s 2s 3s 3p 4s, है ना, and then 4p 3d like this. So you can see this is going to be 1 plus 0 1 हो गया, this is 2 plus 0 2, 3 plus 0 3, 3 plus 1 4, है ना, 4 plus 0 5, sorry 4, 4 plus 1 5, तो ये नहीं होगा, 3 plus 2 ये नहीं होगा, बस यहाँ तक देखना है। तो कितने ऑर्बिटल है, 1 2 3 3 और 1, तो बस इतने आए। 2p मैंने गायब कर दिया, सॉरी 2p, तो 3, सो 1 2 5 6 7 और 10 आ गए 10, ठीक है। तो आइदर यू कैन डू लाइक दिस और यू कैन डू लाइक दिस, जैसे भी सही लगे। थर्टी सिक्स के बाद 34, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी। तो वही है, आपको n की वैल्यू के लिए देखना पड़ेगा, जैसे n की वैल्यू 5 है, ये तो हमने देखा है 4f, राइट। तो अब h और g के बारे में देखना है। तो
तो F के लिए L की वैल्यू क्या थी 3, तो G के लिए क्या हो जाएगी 4 है ना, और H के लिए क्या हो जाएगी 5, तो N की वैल्यू 5 के लिए H की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, तो ये हो गया आंसर। मतलब 4 है हमने देखा था इसलिए मैंने आंसर ये नहीं टिक किया था, आई वाज जस्ट सेइंग कि 5H। क्वेश्चन नंबर 35, ये तो मैंने बताया है 410 को क्या लिखते हैं NLM, ठीक है NLM, तो N की वैल्यू 4, L की वैल्यू 1, 1 का मतलब P, 4P आ गया। क्वेश्चन नंबर 26, 28, पेनल्टीमेट का मतलब होता है 1 बिफोर, तो लास्ट से पहले वाला। एक मिनट, 38 क्या दिखा है, पेनल्टीमेट एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एलिमेंट कंटेन्स 10 and 2 electrons respectively. If the outermost orbit is fourth orbit, the atomic number of elements should be. अब ये पेनल्टीमेट का मतलब क्या हुआ है ना, एक उससे एक पहले, तो n-1 में 12 10 है, पेनल्टीमेट एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कंटेन्स 2, तो ये क्या हो गया n में 2 हो गया, तो बस देख लो कौन सा होगा ये, तो 12 तो हो नहीं सकता, ठीक है राइट, पेनल्टीमेट में उसमें कितने होंगे 8 होंगे, 2 8 2 राइट, ये 22 हो सकता है, ठीक है क्योंकि 3D2 आ जाएगा, दिस कुड बी योर आंसर 32 में, तो बस ये लिख के देख लो उससे आंसर आ जाएगा, मेरे हिसाब से यही होगा 22। 39 40 37 में करेक्ट set of quantum number defining the highest energy of electron in scandium plus ion, तो 20 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं ना। नाउ हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी, स्कैंडियम का क्या होता है, कैसे बढ़ते हैं राइट, सो 1s2 2s2 2p6, स्कैंडियम देख लेते हैं मैंने 3s2 3p6 4s2 3d1, अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने, किससे निकला 4s1 से निकल गया, बट हायर एनर्जी किसकी है 3d1 की, तो ये लिखो n3 l2, फिर कुछ भी हो सकता है, यही हो जाएगा। आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं भैया, एक बार में एक ही क्वेश्चन हो पाएगा ना। वेट, विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम, ये तो मैंने तुमसे बार बार क्यों पूछ रहे हो श्रेया, ये बताया ना क्लास में, मैग्नेटिक मोमेंट लिखना नहीं आता तुम्हें, Fe3+ में क्या होगा, Fe का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो Ar 3d6 4s2, अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालो तो 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो 3d5, यही होगा आंसर। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ही सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैं कैलकुलेट भी नहीं करना है, ठीक है, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट आल्सो। अगर कोई आयन एक्वस नहीं है तो आयनिक मोबिलिटी साइज से देखेंगे, आयनिक अगर पानी में होगा तो पानी के हिसाब से देखेंगे, आयनिक मोबिलिटी का मतलब क्या है, आयन कैसे मूव कर रहा है, तो नॉर्मल साइज देखेंगे, अगर पानी में नहीं होगा तो पानी वाला साइज नहीं देखेंगे, नॉर्मल देखेंगे गैस में कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 26 28, ठीक है, ट्वेंटी 28 ही है ना सुशील, कौन सा क्वेश्चन पूछा था आपने, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन, मैं 26 बता दे रहा हूँ, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट इन हीलियम आयन, फोर्थ से सेकंड में हीलियम आयन में, तो रेडिएशन इमिटेड विल फॉल इन, तो देख लो इनकी एनर्जी क्या है,
सो दिस इज फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी कितनी हो जाएगी -13.6 जेड स्क्वायर, मतलब जेड का मतलब क्या है, हीलियम आयन है, तो 2 का स्क्वायर 4 एन स्क्वायर दैट इज गोइंग टू बी, है ना, 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो ये हो जाएगा, मैंने क्या किया, उल्टा गिर दिया, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर है ना, सॉरी, जेड स्क्वायर 4 और एन स्क्वायर की वैल्यू 16, 4 आ गया। और सेकंड ऑर्बिट में कितना होगा 13.6 इंटू 4/4, तो ये देख लो, ये एनर्जी का डिफरेंस क्या हुआ, एक तरह से ये हो गया कि हीलियम में n इक्वल्स टू 4 से n इक्वल्स टू 2 में आने का मतलब है एनर्जी का डिफरेंस 10.2 है, राइट। तो ये 10.2 का मतलब क्या होगा, आपने पता है हाइड्रोजन के लिए n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू 2 में जो डिफरेंस होता है वो 10.2 होता है। सो दैट इज गोइंग टू बी 2 से 1 जब आता है तो अल्ट्रा वायलेट यूवी, तो ये आ गया एनर्जी के डिफरेंस है, नहीं तो वैल्यू निकाल लेते ये 10.2 का डिफरेंस। Single electron is freeze in energy level with orbit number n with energy x was provided with excess of energy so that it can jump to higher energy level with energy y. तो यहाँ पे कहीं पे with energy x orbit n वैल्यू दे रखी है और इसके पास जो भी एनर्जी है वो x है, x is nothing but -13.6 z square by n square. Is provided with excess of energy so that it jumps to higher energy level with energy y. कोई एनर्जी लेवल है यहाँ पे, इसकी एनर्जी y है. If it can emit radiation of 6 different wavelength on d excitement, तो 6 different wavelength से ही आपको समझ में आ जाएगा डेल्टा n की वैल्यू कितनी होगी, है ना। So 6 different wavelength का मतलब क्या हुआ, डेल्टा n into डेल्टा n plus 1 by 2 is going to be 6. So डेल्टा n into डेल्टा n plus 1 is 12. So डेल्टा n is 3. तो एक आंसर तो ये हो गया, ये n1 अगर 1 है तो n2 is going to be 4. और मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, अगर n2 2 है तो n1 2 है तो n2 5, ऐसा कुछ भी हो सकता है, बट लेट्स से टेक दिस, देन द करेक्ट रिलेशन इज, अब आप यहाँ पे पुट करके देख लो x और y की हिसाब से, तो x और y का मतलब क्या हुआ, x का मतलब ये हुआ 13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, तो n1 स्क्वायर, दूसरे वाले का हो गया 13.6 z स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर, सो दिस इज नथिंग बट ये कट जाएगा, सिर्फ बैलेंस करके देख लो, आई थिंक आंसर आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा n 3 है ना, तो एक डिफरेंस 3 है, तो कुछ भी ले लो, n1 की वैल्यू 1 लोगे तो n2 की वैल्यू 4 हो जाएगी। मुझे सारे क्वेश्चन मुझे ही बताने हैं क्या? सबने पूछा एक एक क्वेश्चन, क्या है, मिनिमम अनसर्टेनिटी इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6, if uncertainty in measuring the position is 1 by pi, मिनिमम अनसर्टेनिटी कब होगी, जब h by 4 pi के बारे में बात होगी, है ना, क्योंकि मैंने इससे ज्यादा ही हो सकती है, तो मिनिमम कब होगी, जब बराबर वाली बात आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट, तो उसका मोमेंटम हमें नहीं पता है, अभी छोड़ देते हैं। If the uncertainty in measuring the position is, uncertainty in position is I, तो हटा दो, तो ये हो जाएगा h by 4. Uncertainty in momentum is delta p h by 4. अब डेल्टा यहां से आ जाएगा, तो ये h by lambda is delta p, मतलब डेल्टा lambda is this, सॉल्व कर लो इससे, 6 वोल्ट का यूज भी आएगा कुछ, रेस्ट से अगर हमने किया है तो
एक मिनट, ये नैनोमीटर में है, ठीक है, तो ये एकदम h/4 पाई नहीं है, वी हैव टू एक्चुअली कैलकुलेट इट। और अगर ये 6 वोल्ट रेस्ट से 6 वोल्ट पे आ रहा है, राइट, so the lambda value is going to be for de Broglie wavelength is going to be 12.3 divided by root v. Lambda is 12.3 divided by root 6, तो root 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 आ जाएगा, 2.05 ऐसा कुछ आ जाएगा lambda. Now minimum uncertainty in de Broglie wavelength of electron, ये तो lambda की वैल्यू आ गई, तो डेल्टा एक रिलेशन ये भी तो है, एक मिनट इससे करके देखो एक बार आंसर क्या आ रहा है। सर हाँ सर हमें ये वाला फॉर्मूला पता है कि P इक्वल टू H अपॉन लैम्डा ना, तो हम उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, हाँ तो उससे भी आ जाएगा, dp by d lambda कर सकते हैं, यस हाँ ये करेंगे, इक्वल्स टू h by lambda है ना, तो dp by d lambda कर लो उसको, तो ये आ जाएगा h, lambda की वैल्यू हो जाएगी ऊपर -1, तो lambda -2 माइनस h by lambda स्क्वायर, ये आ गया। अब डेल्टा पता है तो डेल्टा ये निकाल लेंगे, lambda की वैल्यू पता है, यस वी कैन सॉल्व दिस। कैसे करेंगे, करेक्ट, लेक्चर खत्म हो गया। हाँ राइट, यू कैन कैलकुलेट द लैम्डा, यहाँ पे h by lambda, सॉरी ये h by lambda है, ठीक है। लैम्डा आपने कैसे कैलकुलेट किया है यहाँ पे, लेट्स सी, तो ये हो गया आपका √150 बाई v, हाँ ये भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ से डायरेक्टली आ रहा है 25, सो लैम्डा इज एग्जैक्टली 5, ये 5 आ गया, उसको यूज मत करो, यहाँ से डायरेक्टली आ गया, सो लैम्डा की वैल्यू 5 आ गई, डेल्टा पी पता है, डेल्टा लैम्डा निकल जाएगा यहाँ से h by lambda स्क्वायर। सो h की वैल्यू पता है, लैम्डा स्क्वायर कितना है 25, एंड दिस इज गोइंग टू बी एंगस्ट्रॉम में आएगा ये, तो अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ 10 to -20 हो गया। डेल्टा पी मुझे पता है, तो आई विल कैलकुलेट डेल्टा लैम्डा, ठीक है। और बताओ भाई, ट्वेंटी एट हो गया, 27, 31, 30। What should be the increase in kinetic energy of electron in order to decrease its de Broglie wavelength from 100 nanometer to 50 nanometer? तो इसमें क्या दिक्कत है, इसमें ये क्या होगा, lambda equals to, we know this part, h by √2 mke, बस। अगर हमें यहाँ पे वेवलेंथ हमने डबल, मतलब ये दुगनी थी ये, तो इसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी आप देख सकते हो, और एक के रेस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, तो यू विल बी एबल टू नो द एनर्जी। रिलेशन निकाल लो पहले, तो ये 100 इक्वल्स टू h by √2 mke को लिख लो, लेट्स से ये कोई वैल्यू है x ना, x1, दूसरी बार 50 h by √2 m x2, कट गया 2 टाइम्स, ये कट गया, तो x2 by x1 का फॉर्मूला आ जाएगा, ये 2/1 इज रूट x2 by x1, तो इसको स्क्वायर कर लो, 4 इक्वल्स टू x2 by x1, x2 इज 4x1। अब एक किसी की वैल्यू निकाल लो, उससे आ जाएगा आंसर। व्हाट शुड इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना,
तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, 4 टाइम्स बढ़ गई। इंक्रीज पूछा गया है तो इंक्रीज कितना हो जाएगा, वो 4x2 माइनस x1 निकालना है तो वो हो जाएगा 3x1 के अलावा बराबर। x1 की वैल्यू निकाल लो यहाँ पे 100 नैनोमीटर डाल के। लैम्डा इज इन नैनोमीटर। अभी तो हमने कुछ किया नहीं, अभी तो हमने वैल्यू कर दी। अब वैल्यू डाल दो यहाँ पे, लैम्डा की वैल्यू 100 नैनोमीटर है तो कितना हो जाएगा 10⁻⁹ 10⁻⁷ इक्वल्स टू h √2m। m की वैल्यू भी पता है आपको के, इसका स्क्वायर कर लो 10⁻⁴ इक्वल्स टू h स्क्वायर बाई 2m के, आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, इसको पुट कर दो यहाँ पे आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ NiX प्लस इस 2.82। तो मैंने बोला था जब भी 2.82 ऐसा कुछ दे रखा हो तो इस पहले वाले जो डेसिमल से पहले वाला है ये बताता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 2। अब निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, Ar 3d8 4s2। 3d8 को लिख लो, ये 3d8 कैसा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। मतलब आप ऑब्वियसली ऐसे भरोगे, बट मैंने ऐसे भर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और 4s2 इज लाइक दिस। अब बताओ इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालें कि 2 अनपेयर्ड बचे, तो 2 ये निकाल दो बस। शायद आपको मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत आ रही है, पहले 4s से निकालना है इलेक्ट्रॉन। सर हम्म सर एक बार इसके 22 पे जाओ ना। सर इसका ऑप्शन ए क्यों नहीं हो सकता? देखते हैं। Photons of frequency nu falls on the metal surface with the threshold nu naught, then all ejected electron have same kinetic energy। ये नहीं है ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैंने बताया था वो होती है ये। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 से लेके वेरी करती है। हाँ सर ठीक है, समझा। तो ये लिखा हुआ है सेकंड ऑप्शन। हाँ सर समझ गया। सर और एक डाउट है, पूछूं? सर अभी आपने जितना भी होमवर्क दिया वो मतलब डाउट क्लास में ही होगा पूरा सॉल्व? आज वाला जो दिया था वो नहीं, जो पिछला वाला है वो। आज जो दिया है वो फ्राइडे को करेंगे। ओके सर, तो और डाउट क्लास कंपलसरी है ना? हम्म हाँ सर समझ गया। ओके थैंक यू सर। ठीक है भाई, चलो आज के लिए फिर इतना ही। आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर फॉर डी ब्लॉक अक्रॉस द पीरियड, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, क्योंकि उसमें वेरिएशन आता है बहुत आगे पीछे। ठीक है, सो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट जनरली यू इफ यू वांट टू से देन इट इज गोइंग टू इंक्रीज generally increases ionization energy। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो फिर बढ़ेगा, राइट। If the de Broglie wavelength of vehicle moving with the velocity v is lambda, the load is changed so that the velocity as well as kinetic energy is doubled, what will be new de Broglie wavelength? Load is changed का मतलब है मास बढ़ गया, राइट। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, एंड इफ यू आर गोइंग टू से द काइनेटिक एनर्जी हैज डबल्ड, तो दूसरे टाइम पे 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी हो गई, मान लो हाफ m डैश b डैश स्क्वायर। अब आप देख लो यहाँ पे क्या हुआ, v और v डैश में रिलेशन है, इन्होंने बोला कि लोड इज चेंज सो दैट द काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड, तो लोड इज चेंज सो दैट द वेलोसिटी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी डबल। तो ये क्या हो गया,
यहाँ पे दो गुना हो गया तो ये 2v का स्क्वायर हो गया, मतलब 4v। अब ये रिलेशन देख लो, इसमें डिवाइड कर दो, ये काइनेटिक एनर्जी कट गया, ये v स्क्वायर कट गया, हाफ हाफ कट गया, तो ये बचा गया 1/2 इक्वल्स टू m/4m डैश, बस से कट गया। तो m इक्वल्स टू आ जाएगा 2m डैश, मतलब m डैश क्या हो जाएगा, आधा। अब इन्होंने पूछा व्हाट इज गोइंग टू बी न्यू डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो डाल दो आंसर, लैम्डा इक्वल्स टू h/√2m ke। तो न्यू वाले में क्या होगा m डैश, और नया वाला काइनेटिक एनर्जी, तो लैम्डा इक्वल्स टू, राइट, सो दिस इज लैम्डा डैश, यू डोंट नो। बस इससे आ जाएगा आंसर, है ना। पहले वाले केस में क्या था, लैम्डा डैश, पहले वाले केस में लैम्डा इक्वल्स टू h/√2m ke, दूसरे वाले केस में लैम्डा डैश इक्वल्स टू h/√2m डैश ke डैश। अब वैल्यू रख दो, m dash is going to be, yeah, 2m dash is equals to m, so this is lambda dash is nothing but h/√m। ke dash की वैल्यू कितनी है, डबल हो गई है, so it is going to be 2ke, तो it is going to be same, है ना, ये 2m ke आ जाएगा, तो लैम्डा वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम, लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, चलो भाई, that's it। हेलो सर। हाँ बेटा। सर जो ये सॉरी फर्स्ट ग्रुप है, हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयनिक मोबिलिटी डिक्रीज होना चाहिए। गैसियस स्टेट में बात कर रहे हो कि हाइड्रेशन पानी में बात कर रहे हो? वो सर मतलब ऐसा स्टेट्स गिवन नहीं है उस क्वेश्चन में। नीचे लिखा होगा एक्वस, AQ लिखा होगा। सर लिखा नहीं है, अपने बुकलेट का ही क्वेश्चन है। अगर नहीं लिखा है तो फिर नॉर्मल गैस मान लेंगे, अगर एक्वस लिखा है तो फिर वो मानेंगे पानी में। तो डिक्रीज सर वो अपने बुकलेट का कौन सा क्वेश्चन है? सर जेई एडवांस का 21st। विंडोज टू जेई एडवांस, गेट इक्विप्ड टू जेई एडवांस। गेट इक्विप्ड। मेरे में नहीं है। 21st क्वेश्चन। गेट इक्विप्ड टू जेई में सर एडवांस में है नहीं मेरे में। ये है ना एडवांस, कॉम्प्रिहेंशन टाइप से स्टार्ट हो रहा है ना? नहीं सर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, मल्टीपल चॉइस से स्टार्ट हो रहा है। मेरे में नहीं है फिर जी, और पुरानी, मेरी पुरानी बुक है ना ये। सर मैं आपको फोटो भेजती हूँ बाद में। एंड सर ऑक्सीडेशन एनर्जी क्या होता है? मतलब ऑक्सीडेशन एनर्जी क्या होगा कि ऑक्सीडेशन के लिए, मतलब जितनी एनर्जी ऑक्सीडेशन में लगेगी वो ऑक्सीडेशन जैसे मैंने बताया था ना, डेल्टा एच रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जो रिएक्शन हो उसके हिसाब से, तो ऑक्सीडेशन के हिसाब से ऑक्सीडेशन एनर्जी। तो कोई मेटल सॉलिड में है और वो ऑक्सीडाइज होके मान लो जा रहा है तो वो ऑक्सीडेशन एनर्जी होगी। अगर एक सॉलिड में मेटल है और वो एक्वस हो रहा है तो फिर ऑक्सीडेशन एनर्जी है। करेक्ट, टोटल डेल्टा एच। ओके, तो उसका सर कंपैरिजन कैसे करते हैं? कहाँ है क्वेश्चन? वो भी सर गेट इक्विप्ड जेईई मेंस में। एक मिनट में देख रहा हूँ। गेट इक्विप्ड टू जेईई मेन में हाँ, कौन सा क्वेश्चन है? 40। The oxidation energy of lithium to lithium plus is least in group 1 because, ठीक है। अब एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, लिथियम से लेके लिथियम प्लस तक वैल्यू ये जो है ना, ये लीस्ट क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, ये वैल्यू निगेटिव में है इसलिए लीस्ट बोल रहे हैं, ये वैल्यू निगेटिव में आ रही है।
So that is going to have because maximum hydration energy. Maximum heat of hydration. सर आपका स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रहा है. Okay, yes. Maximum hydration energy के कारण है. Okay. ऑक्सीडेशन एनर्जी का मतलब क्या है? लिथियम से लिथियम प्लस गए तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई टोटल? तो लिथियम सॉलिड से लिथियम प्लस एक्वस जाने में कौन कौन सी लगेगी? लिथियम गैस जाएगा तो सब्लिमेशन लगेगी, आयनाइजेशन लगेगी, है ना, इन सब का सम होगा, हाइड्रेशन एनर्जी लगेगी. तो मेनली हाइड्रेशन के कारण आता है. ओके. ठीक है. ओके. हेलो सर. हाँ बोलो सर मुझे 24th में एक बार डाउट था, अगर आप ऊपर से बता देंगे तो. इसी में नहीं सर, ये क्वेश्चन पेपर में. The speed of electron revolving around hydrogen nucleus is this, the distance of electron from nucleus is. तो स्पीड का फॉर्मूला होता है एक, क्या होता है? 2.18 into 10⁶ into z/n. ये देख लो, इससे रिलेट कर लो. वेलोसिटी दे रखी है यहाँ पे 10⁶ 0.54 है, तो उसको 5.4 लिख लेते हैं. 5.4 into 10⁻5 equals to 2.18 into 10⁶ to z/n. हाइड्रोजन है तो z की वैल्यू 1 ही है, n की वैल्यू निकालनी है बस. n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2.18 into 10⁶ डिवाइड बाय 5.47 into 10⁵. तो इससे 10 आ गया, तो ये आ गया 21.8 डिवाइड बाय 5.47. कितना जाएगा? 4 टाइम्स जाएगा. अब इन्होंने डिस्टेंस पूछी है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो इससे n की वैल्यू आ गई 4, तो r4 इक्वल्स टू r0 n स्क्वायर बाय z. r0 आपको पता है 0.5. ओके सर, समझ गया. थैंक यू सर. चलो फिर ओके, वी आर फिनिशिंग ओवर हियर. ठीक है.